Hi everyone, this is Abhijit from Abhi Changer. Let's talk about Dark Netflix, the series which is doing so much discussion on social media and internet, and deservedly so. It's a very great series, very complex. So basically, Dark is a time travel concept ka series. It talks about Winden, a place in Germany, जहाँ पे 4 families are there: Kahnwald, Nielsen, Doppler and Tiedemann. ये 4 families, उनके जो members है, how they are suffering, over and over in that place, how they cannot escape that fate even if they try to do it. तो वो चीज़ें वो कैसे change कर सकते हैं, how they start understanding that everything that is happening for a reason and they cannot escape their fate. Even they try a lot, they discover this time travel through the cave or passage ke through, and how they try to change it, how they understand, how they get an understanding of whatever is happening. They try to change. So it's a story about this. But it's not really that simple, okay? There's also this Tannhaus, who's a scientist who invents time travel. See, if you haven't watched the series, please don't watch this video because I'm going to reveal a lot of spoilers because I'm going to discuss about it. Okay, so these 4 family, then this Tannhaus, then there's Adam, Eva, then Noah and Silja, and I think there's also this Adam and Eva's son. So all these characters and how they get intertwined and how everything is connected. ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर पूरा series based है. It's a very complex series क्योंकि see there are different time. See there is no present, there is no past, there is no future. 1888 का एक टाइम है, 1920s का एक टाइम है, 1953 का एक टाइम है, 1986 का एक टाइम है, 2019-20 का एक टाइम है, 2053 का एक टाइम है. ये 6-7 टाइम जोन हमको बताए गए कि हर एक जगह पे ये कैरेक्टर्स कैसे क्या कर रहे हैं, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इट्स नॉट जस्ट पास्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर, फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स है, कैसे ये कैरेक्टर्स अलग अलग एरा में क्या कर रहे हैं, एंड दे हैव टू वर्क इन सच अ वे. मतलब ऐसा नहीं कि आप पास्ट में जाके कोई चीज़ चेंज करोगे तो चेंज होगा. यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है, हाउ दे कैन चेंज ए टाइम ट्रेवल में जाके. दे हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो हाउ दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हर एक फैमिली का कैसा कैसा सीक्रेट है, एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड देम, ऑल द ट्रेजेडीज दैट आर हैपनिंग, दे आर ऑल बाउंड. ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर का खुद का एक आइसोलेटेड कोई जर्नी है, नहीं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो दिस सीरीज अबाउट दैट. So first season में Jonas comes to know through his father's suicide and the clues that has been left by him to him, कि उसको मालूम पड़ता है when कि जो भी हो रहा है उसके साथ वो क्यों हो रहा है, and it has to happen in such a way. He cannot stop it. Even when he has the power to stop it, he can do it. He just does. He can't do it. Time travel doesn't allow him. तो first season में he starts understanding that. ठीक है, second season में he starts understanding कि there are different worlds. Or everything is, and he has a bigger part to play. It's not just him. There are every family member, every other family in Winden has a part to play. Nuclear plant का भी अपना एक अलग कोई secret है. वो it has to happen in certain way. Tiedemann family का, Doppler का, then Nielsen family का, everyone has a part to play. And third season में he starts understanding there is not just one world, there are parallel worlds. And when they come to know कि to stop these 2 worlds from fighting for existence, there's a loophole that they have to find, and through the loophole they have to destroy this world so that everything can go back to normal, and where time can be linear. There is no such thing as time as circular. It just keeps happening over and over again. So they have to do. So ये basically story है. ठीक है, it's a very complex story. So ये आप एक या 2 सेंटेंस में you cannot summarize it, and that's the beauty of Dark, कि इतना अच्छी तरह से उन्होंने टाइम ट्रैवल कंसेप्ट और कैरेक्टर्स को इतना डेप्थ दिया है कि सीरीज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. ओके, there are so many paradoxes after paradox. After once you are into the series, 1-2 एपिसोड देखने के बाद इतने पैराडॉक्स होते रहते हैं कि आपको मालूम पड़ता है कि no matter what you do, you cannot change whatever is happening. In fact, the more you try to change, that itself gives rise to the situation that has already happened. So that's a paradox. So many paradox, every situation, every episode, every season में वो paradox दिखते रहते हैं. ठीक है. So let's talk about first. See, I'm not going to talk about analysis of each and every जो हो रहा है वो क्या हो रहा है. This is not that kind of video. I'm just going to talk about generally ये series great क्यों है, because there's already a lot of analysis has been done, and I think if I start doing analysis 4-5 घंटे का video बन जाएगा.
So let's talk about writing and direction first. कि you come up with this concept, okay? कि एक टाइम ट्रैवल कंसेप्ट है जहाँ पे कैरेक्टर्स टाइम ट्रैवल में जाके कैसे चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्लैक होल एंड ऑल दोस थिंग्स चीज़ें समझ के वो हाउ दे कैन ट्रैवल थ्रू टाइम, ठीक है? सो एक कंसेप्ट लेके आना, उसके बाद 6 टाइम एरा के ऊपर कॉन्टेक्स्ट रिलेट करना। देखो अभी समझ लो ये 2020 का प्रेजेंट है या 19 का प्रेजेंट है जहाँ पे जोनस है, तो उसमें 2019 में ये 4 फैमिलीज है, तो उनको कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। सो राइटिंग हैज़ बीन डन टू दैम। 1888 में भी इन लोग का एक कॉन्टेक्स्ट है, 1920s में, 1950s में, 1986 में, 2020 में, 2053 में। 6 टाइम जोन या 7 टाइम जोन को हर कैरेक्टर को कॉन्टेक्स्ट देना, और वो कॉन्टेक्स्ट को इतना अमेजिंग वे से टाइम ट्रैवल क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एक्यूरेटली डिपिक्ट करना, यू नो, और उस तरह से स्टोरी भी बताना इन अ वे दैट इज इंटरेस्टिंग इनफ फॉर ऑडियंस। इट्स एन अमेजिंग जॉब, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो यार, एक मूवी, एक कॉम्प्लेक्स मूवी बनाना इटसेल्फ इज सच ए डिफिकल्ट जॉब, बट इन्होंने एक 3 सीजन का सीरीज बनाया है जहाँ पे नॉट जस्ट एवरी सीजन इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट जस्ट एवरी एपिसोड इज कॉम्प्लिकेटेड, एवरी सीन इज कॉम्प्लिकेटेड। वंस यू वॉच 4-5 एपिसोड, जब भी आप कोई नया सीन देखोगे आपको ऐसा लगेगा ये कौन है, ये कौन से एरा का है। यू हैव टू मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ता है। सो जस्ट इमेजिन आप इतना मेहनत करें तो उन्होंने कितना दिमाग लगाया रहेगा। हाउ मच काइंड ऑफ ब्रिलियंट दिस राइटिंग टीम ऑफ डार्क इज, हाउ मच ब्रिलियंट द डायरेक्शन ऑफ दिस डार्क इज, जस्ट वॉच कि क्लॉडिया जो 2020 में है, जो क्लॉडिया फ्यूचर में है, जो क्लॉडिया 1980s में है या 1950s में है, हर एक जन को देख के आपको समझता है कि किस तरह से उन्होंने कंटिन्यूएशन किया है। कभी कभी क्लॉडिया को देखे ये कौन है, क्लॉडिया है, रेजिना है, ऑल द उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग। फिर डॉपलर 1950s में वो बच्चा है, 1980s में वो क्या कर रहा है, फिर 2020 में वो क्या कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स जो एवरीथिंग उन्होंने जिस तरह से पैन आउट किया है, जो फैमिली ट्री बनता है। सो जस्ट इमेजिन कितना इन डेप्थ राइटिंग है, कितना इन डेप्थ डायरेक्शन है। इट्स अमेजिंग, and not just this defining years, it is also in between time ki how this year and how these things came to be in this defining years. So in between time का भी उन्होंने जो इस तरह से writing और direction किया है, it's amazing. So hats off to the team of first writing and direction कि जिस तरह से उन्होंने ये pan out किया है, explore किया है, it's amazing. One of the best work that has been done, not just in sci-fi, in overall storytelling of any story. Great work, great. Okay. सो लाइक आई सेड कि एवरी कैरेक्टर को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देना। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कास्टिंग। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिया गया है 6 डिफरेंट टाइमिंग में, ठीक है, 1888 से लेकर 2053 के बीच में। अभी सी इफ आई एम अ किड, मेरे फेशियल स्ट्रक्चर 20 साल के बाद 30 साल के बाद चेंज हो गया, बट देयर विल बी सम फैमिलियरिटी, राइट? So what they have created brilliantly is, let's take every character जो casting किया गया है, it looks like him or her in future and in past and in present. जैसे क्लॉडिया देख लो, 1950s में वो जो बच्ची है, उसको देख के मतलब she is very smart, she has that spark. 1986 में उसको देख के आप देखो तो जब वो 30 साल के बाद बड़ी होगी तो कैसे दिखेगी, there is a resemblance. वही 2020 में और 2053 में जो वो बुढ़ी होगी तो भी उसमें बहुत रिजेम्बलेंस है। टेक एग्जांपल ऑफ जोनस 2020 में जैसा है, यंग है, 20-22 साल का है। जब वो बुढ़ा होगा एडम तो कैसा होगा, जब वो 20-30 साल के बाद होगा जैसा रहेगा, या 1880s में जैसा है वो कैसा होगा, तो उसमें थोड़ा फेशियल स्ट्रक्चर। तो casting such people who have resemblance as well as have the capability to perform, it's a very मतलब आप किसी को हायर कर सकते हो जो लुक अलाइक है, बट एट द सेम टाइम उसको उसका परफॉर्मेंस भी उतना आना चाहिए। सो वो जिस तरह से उन्होंने कास्टिंग किया है, इट्स अमेजिंग। सी आई एम टेलिंग यू विल बी टॉकिंग सो मच अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर थिंग्स ऑन परफॉर्मेंसेज, बट वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट कास्टिंग टीम की जिस तरह से उन्होंने काम किया है कास्टिंग पे, कि उसको देख के लगता है हाँ ये क्लॉडिया, देख के आपको मालूम पड़ता है क्लॉडिया है। हेल्गा किड को देख के मुझे लगता है हाँ ये हेल्गे है। सो ऐसा जैसे एलिजाबेथ को बचपन में आप जो देखते हो और बाद में 2053 में जो देखते हो, उसको आपको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आने लगता है, हाँ ये एलिजाबेथ है। नोआ जो बोलते हैं ना 20-22 साल का रहेगा, नोआ जो 40-50 साल का रहेगा। सो द कास्टिंग दैट हैज बीन डन जो अमेजिंग रिजेम्बलेंस है, इट्स अमेजिंग। आई मीन यू हैव टू अप्रिशिएट दिस थिंग दैट दे हैव डन। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंसेज, ऑल्सो द कास्टिंग दैट दे हैव डन, व्हिच नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड।
So like I said, yeah, direction they have done amazing. जिस तरह से बताया गया है, it is complex enough, but at the same time you don't lose your interest, और at the same time आप कोई चीज़ इतना फटाक से पकड़ भी नहीं सकते. See, once you understand some story very easily ना, आप you lose your respect over it when you're watching a complex series. So इन लोगों ने एक balance बहुत अच्छी तरह से किया कि इतना complicated है कि you scratch your head, मतलब कि क्या चल रहा है. एवरी एपिसोड या कोई भी सीन आप देख रहे हो तो आपको पहले देखना पड़ता है ये कौन सा टाइम है, ये कौन है, इसका रिलेशन क्या है. ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके रखी है. सो हैट्स ऑफ टू देयर वर्क यार. मतलब कितना जबरदस्त माइलस्टोन दे हैव सेट. You have to be fully into the series to understand its minute what do you say details. There are so many things that you will realize after multiple viewings. अभी मैं अगर 6 महीने बाद इसको देखूंगा तो there are so many new things that I'll understand about the series. That's how great it is. It requires multiple viewing. Okay. Performances. Like I said कि it's not just one character. वो character का past, present, future हर एक को बराबर casting लेना और उन लोगों का performance होना is very important. See, जोनस, ये जो जोनस है, उल्ड्रिच है, कैथरीना है, हैना है, फिर हेल्गे है, फिर शार्लेट है, पीटर है, एवरी कैरेक्टर दैट इज अडल्ट, उन लोगों का तो परफॉर्मेंस अमेजिंग है ही. बट ये जो किड कैरेक्टर चाइल्ड एक्टर्स है यार, जो हेल्गे है, उसका एक्सप्रेशन देख लो, क्लॉडिया का एक्सप्रेशन देख लो, या फिर आप एलिजाबेथ का परफॉर्मेंसेस देख लो. दिस ऑल परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग. वी शुड रियली अप्रिशिएट कि क्या परफॉर्मेंस दिया एक जन ने. इन लोग का जो कैरेक्टर डेप्थ, दे आर इनटू द कैरेक्टर्स. अमेजिंग परफॉर्मेंस. आई जस्ट से अबाउट दिस जोनस, से आई थिंक फॉर जोनस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीरीज, बिकॉज ये बंदा मतलब हार्डली आई थिंक एक ही सीन में वो हंसा है, जहाँ पे वो साइकिल में वो ब्लू टी शर्ट पहन के घूम रहा है. रेस्ट द थ्रू आउट द सीरीज ही इज ऑलवेज वेरी tragic, always very sad, because the things he has suffered, trauma जो उसने सफर किया है, he is always very sad. तो वो देख के आपको ऐसा लगता है कि you really experience his journey. ऐसा हर एक कैरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जैसे उल्ड्रिच है 1950s में या 1980s में जो वो असाइलम में है, जिस तरह का उसका परफॉर्मेंसेज है यार, ये खतरनाक एक्टर्स है यार, जबरदस्त जो परफॉर्मेंसेज इन्होंने दिए है. सो हैट्स ऑफ टू देम. And let's talk about yes, cinematography. Another big strength of Dark is cinematography. I think last time I was so impressed with anyone's cinematography was Blade Runner, Roger Deakins, Blade Runner 2049. See, let me tell you why cinematography of Dark is great. Because if you see this, जब आप एक सिर्फ सीन देख लेते हो कि आप अपने समझ लो कि एक धूप है और न्यूक्लियर प्लांट देख रहे हो, तो इट इज इन you can say it's in 1986. Just by looking at it you can understand, because उन्होंने cinematography में चीज़ें इतनी डिफाइन की है ना, स्टैंडर्डाइज, कि यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन से एरा में है. आप एकदम डार्क और होता है ना जला हुआ सिचुएशन देख रहे हो तो इट्स 2053 पोस्ट अपोकैलिप्स. देन आप अगर एकदम सनी साइड देख रहे हो, एवरीथिंग इज वेरी फार्म लोकेटेड, इट्स 1950s. अगर आप बारिश गिर रही है और थोड़ा होता है ना एंशियंट काइंड ऑफ एरा है, तो वो 1920s या 1880s है. तो ये सब देख के सिनेमाटोग्राफी से आपको मालूम पड़ता है. एरियल शॉट्स ऑफ विंडन, देन केव का जो केव के अंदर जाने या बाहर से जो केव का मोशन शॉट है, देन जब जोनस साइकिल चला रहा है पीछे से जो कैमरा वर्क है, इट हैज बीन डन सो क्वाइट अमेजिंगली. द सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग. सी विंडन, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये शॉट्स देखोगे ना, दूसरे म्यूजिक में, प्लेजेंट म्यूजिक में, तो दिस शॉट्स आर एक्चुअली ब्यूटिफुल. व्हाट cinematographic team of Dark has done is they have created this shot in such way कि वो claustrophobic लगता है. You feel hatred towards Winden, and that's what they have achieved, deliberately. उनको ये shot beautiful नहीं दिखाने, ये shot ऐसे दिखाने जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार Winden से बाहर निकलो. So that cinematography, the whatever they wanted to achieve, they have achieved through cinematography. So amazing work. Another one is editing. क्लास टॉप नॉच एडिटिंग. यू नेवर फील कि एक मतलब तो जो ट्रांजिशन एक सीन से दूसरे सीन में, यू नेवर फील कि एडिटिंग है इसमें, एंड दैट्स द बेस्ट एडिटिंग यू कैन एवर सी. एक बेस्ट वर्क था, सीरियसली अमेजिंग. म्यूजिक, क्लास म्यूजिक, जो ओपनिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीजन में तीनों में अलग अलग ओपनिंग सीन्स है. वो सॉन्ग वही है, लेकिन जिस तरह से वो सिमेट्री बेस्ड वर्क है ओपनिंग थीम में, दैट्स अमेजिंग. इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ एनीथिंग, जो एंड में भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, जो सॉन्ग्स आते हैं, ब्यूटीफुल वर्क. म्यूजिक इज ऑल्सो टॉप नॉच. सो लाइक आई सेड, एवरी सिनेमैटिक वर्क ऑफ डार्क इज अमेजिंग.
writing class. This is where from where everything starts. So writing is amazing. हर कैरेक्टर को कॉन्टेक्स्ट देना अलग अलग टाइम जोन में, वो कैरेक्टर्स को डेप्थ देना, वो कैरेक्टर्स का एक दूसरे से क्या इन्वॉल्वमेंट है, हर एक जन का कैसे, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, क्लास वर्क, डायरेक्शन अमेजिंग, इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग. तीनों सीजन में द वे दे हैव टॉक, एवरी सीजन हैज इट्स ओन डेप्थ, एक इंटेंशन है. ऐसा नहीं कि एक सीजन बना दिया फिर उन्होंने सोचा कि सेकंड सीजन में क्या करते हैं, हाउ टू कैपिटलाइज ऑन ऑडियंस. आई डोंट थिंक दे हैव डन इट लाइक दैट. You know, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 में हुआ, they fucked it up, but Dark they have maintained the interest level throughout the 3 seasons amazingly. So the heights of direction, like I said, then cinematography, performances, casting, editing, music, class work. Okay, then there are some quotes which I really feel is very in-depth quotes. You know, I always appreciate and I really admire. I even paraphrase quotes in my daily life. So जैसे इसमें है कि a man can do what he wills but he can't will what he wills. Whatever you know is a drop, what you don't know is an ocean. Everything is connected. That how past is influenced by future. You know, जिस तरह quotes जो है, then the end is the beginning, a beginning is an end. It's actually very heavy quote है, जो आपने start के episode में first scene में जो देखा है और end में जो देखा है. It is, you know, end beginning है, beginning end है. So there is a lot of things. There are also a lot of paradoxes and there are so many things that you will realize once you watch the series. 6-7 महीने बाद फिर से multiple review करोगे ना, will start understanding कि इसका और depth क्या है, you know. Then so let's talk about also the importance of Dark. ठीक है, it's a great series. ठीक है. See, when I had watched in 2010, I had watched Christopher Nolan's Inception. So at that point of time, I was not really that mature as a cinema goer. I never used to watch that many Hollywood films. तो मैंने जब Inception देखा था तो you know, that changed everything for me. Because at that point of time, that is the most complicated film I had watched. तो उसके बाद मैंने क्रिस्टोफर नोलन के बहुत सारे मूवीज देखने चालू किए. My horizon or understanding of films and different concept, you know, expanded. I started understanding कि दुनिया में ऐसे मूवीज भी बनते हैं. Once you start realizing, तो आपका एक स्कोप जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो समझने लगता है, जो एक्सपांड होता है. Then I started watching Nolan's film, then I started watching Stanley Kubrick's films, 2000 Space Odyssey, then Shining, Clockwork Orange, Eyes Wide Shut, डेविड क्रॉनबर्ग के फिल्म्स देखने लगा मैं, डेविड लिंच के फिल्म देखने लगा, डेनी विलेन्यूव के मूवीज देखने लगा. तो ये सब मूवीज देखने के बाद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिल्म्स, साई-फाई, टाइम ट्रैवल, ये सब मूवीज के जो अंडरस्टैंडिंग है, यू दैट गेट एक्सपांडेड. सो फॉर मी इंसेप्शन वाज दैट डिफाइनिंग फिल्म. देन स्टैनली क्यूब्रिक वाज अ डिफाइनिंग डायरेक्टर जिसने मेरा स्कोप बढ़ाया. देन इंटरस्टेलर केम. सो ये सब चीजें मालूम पड़ी. तो इंसेप्शन इज नो लॉन्गर कॉम्प्लेक्स फिल्म फॉर मी. नाउ दिस इज अनदर डिफाइनिंग सीरीज, डार्क. 2020 में हम लोग 3rd सीजन में देख लिया है. दिस हैज नाउ क्रिएटेड अ बेंचमार्क फॉर मी कि इसने टाइम ट्रैवल कंसेप्ट, क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट, इतना पैरेलल वर्ल्ड का कंसेप्ट इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया है. नॉट जस्ट सी मूवी, जैसे मैंने बोला कि मूवी, कॉम्प्लेक्स मूवी बनाना इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क. आप एक सीरीज बना रहे हो 3 पार्ट का, जिसमें हर एपिसोड, हर सीन इतना कॉम्प्लिकेटेड है. सो इट्स अ पीस ऑफ वर्क, इट्स अ माइलस्टोन व्हाट दे हैव डन, इट्स अ मास्टरपीस व्हाट दे हैव डन. ठीक है. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीरीज इज कि आई एंड सो मेनी अदर पीपल एज एन ऑडियंस, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इट हैज एक्सपांडेड. तो अभी फ्यूचर में बहुत सारे फिल्म मेकर्स है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, वो सोचेंगे कि यार मेरे पास भी ऐसा कंसेप्ट, मैं भी लाता हूँ, मैं भी कुछ नया बनाता हूँ. सो देयर ऑल्सो इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हम लोग अलग से नया कोई तो कंसेप्ट आएगा कॉम्प्लेक्स, यू नो, उसके ऊपर भी विल लूज अवर माइंड. ओह फक, दिस इज इवन अनदर माइंडफक सीरीज. So what Dark has done is it has taken the cinema culture forward. I always talk about cinema culture. What they have done is they have changed things. Now this will be the milestone. Next time any series, complex series or complex movie comes, people will be comparing with Dark. This is another Dark. Like, do you understand? This is how people talk. So Dark, they have done this. This is the importance of Dark series. They have taken the cinema culture forward. They have expanded the horizons of understanding of audience. And you should also appreciate audience कि यार एक टाइम पे we never used to understand कि ये complexity क्या होता है. Now we as an audience we are so much patient. We show so much patience towards this kind of series. जहाँ पे हमको नहीं समझ आता, we read about it.
एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्वांटम फिजिक्स क्या है. यार मेरे को स्कूल में ऐसा पढ़ा देते, मैं नहीं पढ़ता था, बट अभी द वे दे हैव क्रिएटेड कि कैरेक्टर्स के ऊपर से कॉन्टेक्स्ट देके जिस तरह से लोग टाइम ट्रैवल ये सब कंसेप्ट बताते हैं. सो एज एन ऑडियंस वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट अस कि हम लोग ये सब सीरीज को उतना रिकॉग्निशन दे रहे हैं. दैट्स व्हाई डार्क इज सो मच पॉपुलर. यार 10 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन्स जब आया था हमको पता नहीं था कि फैंटेसी सीरीज इतनी ग्रेट हो सकती है. You know, so audience is also evolved and audience is also appreciating this kind of work. So amazing जिस तरह से हमारा जो community है कि film makers and audience दोनों they work hand in hand and appreciate each other. So it's a good thing what Dark has achieved, a milestone. Then see Westworld is one of the best series I have watched. Not entire series. I would say first season of Westworld was so great. I mean, it was a benchmark for me. It's still a benchmark for me. Most people do not understand. They don't think that Westworld is that complicated. It's actually very complex. But what Westworld couldn't achieve is its second and third season is not that great. And in second season, that excitement, that thrill, and that quality goes down. Third is the best. But what Dark has done amazing is they have managed to keep that quality, that interest, that sheer will of keeping things very intact, very well. First season, second season, third season, तीनों season is amazing, and I think this is why it becomes one of the best works in television series. So hats off to them. So if you haven't watched it, please watch it. You will understand कि किस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ beautifully explore की है. It's not really easy. हम लोग जो देख रहे हैं और ये सब समझ रहे हैं, just imagine उन्होंने जो create करना था, सिर्फ concept लेना, उसके बाद वो कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना अलग अलग एंगल से, अलग अलग टाइम जोन से, और उसके बाद उसको डायरेक्शन के हिसाब से इंटरेस्टिंग वे में बनाना, ये कॉम्प्लिकेटेड इनफ सो दैट पीपल विल स्पेंड सो मच टाइम. और यही सब परफॉर्मेंस वाइज, कास्टिंग वाइज, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, एवरीथिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, रिफाइंड बनाना, पीपल आर गोइंग टू टॉक ओवर एंड ओवर अगेन. इट टेक्स लॉट ऑफ कट्स एंड टेक्स लॉट ऑफ विजन. सो हैट्स ऑफ टू देम. थैंक यू.